Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you doing, students? I hope you all are fine. In our previous class, we covered page number 46 and page number 47. Different exercises we did, जिसमें हमने अपने फ्रेंड्स के साथ कॉन्वर्सेशन की थी, डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे थे और हमने सीखा था कि हम किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं. और लास्ट में हमने एक रिटन वर्क किया था कॉपी में, दैट वॉज लर्न टू राइट. आई गेव यू होमवर्क. आई थिंक यू हैव कंप्लीटेड दिस होमवर्क. आपने कर लिया ना ये काम? लाइक दिस. राइट 4 थिंग्स अ पेशेंट नीड्स टू डू टू बिकम हेल्दी. पेशेंट को क्या करना चाहिए हेल्दी रहने के लिए? आपको लिखना है. बेसिकली यू जस्ट हैव टू राइट 4 सेंटेंसेस. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज राइट 4 थिंग्स अ पेशेंट डज नॉट नीड टू डू. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पेशेंट को नहीं करनी चाहिए? आपको 4 सेंटेंसेस लिखने थे. आई होप यू हैव डन दिस होमवर्क. Another homework that I gave you, 4 sentences about what you want to do on a school trip. अगर आप कहीं स्कूल ट्रिप पे जाते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं? Another question was write 4 things you do not want to do on a school trip. और अगर आप स्कूल ट्रिप पर जाते हैं, जाना चाहते हैं, तो आप क्या करना नहीं चाहते? We discussed in last class. Now we are moving forward to our today's lecture, that is unit number 11 on page number 48. That is simple present, routine and habits. In previous classes we have discussed what is simple present. Simple present होता क्या है और हम इसमें क्या क्या चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं. I told you. First sing aloud with me and then we will further learn about the simple present. When our teachers come to school, they look fresh, fine and cool. With the stacks of books in their hand, they take us through a magic land. Their words fall like a sun's ray, who teach to make us great one day. They always have a smile on their face and allow us to learn at our own pace. They help us to move in our own way and teach us to grow day by day. Teachers have a special place in our heart, for teaching is the finest form of art. Now concentrate on words. Come, look, take, fall, teach, allow, help, teach. ये words indicate करते हैं और first form of the verb. Teachers plural first form of the verb. They plural look first form of the verb. They take. Their words plural fall. Who teach. They continuation में सेंटेंस allow, help, teach. हमने पढ़ा था ना लास्ट टाइम कि प्लूरल के साथ we use first form of the verb without s and es, but when we use singular he, she, it, we always add s and es with first form of the verb. और I के साथ हम हमेशा यूज़ करते हैं first form of the verb without s and es. Do you have this idea? Let's move to the board. It is unit 11 simple present, routine and habits. जी students, simple present tense tells habitual actions and routines. Simple present structure आपको क्या बताता है कि जो कुछ आप रोज़ाना करते हैं, जो आपकी आदतें हैं या जो भी आपकी रूटीन है, और जब भी हम किसी को बताते हैं उसके बारे में, we will always use simple present tense. You have got the idea कि how can we make the sentence first subject plus हम हमेशा पढ़ते हैं कि first form of the verb and then object. यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई है, that is adverb of frequency. हमें पता है कि adverbs are the words that adds meaning into the verb. ऐसे वर्ड्स जो वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं वो एडवर्ब्स कहलाते हैं. हियर सम एडवर्ब्स आर गिवन लाइक ऑलवेज,
usually, sometimes, rarely, never. Before going to discuss this chart, I'm showing another chart, that is frequency chart. This frequency chart tells about your daily routine and your habits. Always, हमेशा, अगर कोई ऐसा काम है जो आप हमेशा करते हैं, you will use always. Usually, आम तौर पर, अमूमन, अगर कोई काम आप आम तौर पे करना पसंद करते हैं या करते हैं, we will use this word usually. Sometimes, कभी कभी, बाज़ औक़ात, I do not always do this work, but sometimes I do. मैं हमेशा ये काम नहीं करता, लेकिन कभी कभी कर लेता. Rarely, शाज़ो नादिर. हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा, मैं एक्सरसाइज नहीं करता, कभी कभी मैं जिम जाता हूँ. I rarely go to the gym. Never, कभी नहीं, मैं कभी ये काम नहीं करता. I never tell a lie. मैं कभी झूठ नहीं बोलता. I never watch television. मैं कभी टीवी नहीं देखता. अगर आपको इन वर्ड्स के मीनिंग्स मालूम हैं, अगर आपको ये पता है कि कब किस वक्त आपको कौन सा वर्ड यूज़ करना है, you may easily form different sentences of present simple. Now back to the chart. Now, how can you make different sentences? I, मैं, always, हमेशा, get up early, जल्दी उठता हूँ. आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ इसको बना सकते हैं. Let's suppose they always read books. वो हमेशा जो है वो बुक्स पढ़ते हैं. Same here, we usually get up early. हम आम तौर पे जल्दी उठते हैं. हमेशा नहीं उठ पाते, संडे को नहीं उठ पाते, ऑफ डेज़ में नहीं उठ पाते, लेकिन हमें स्कूल जाना होता है, हमारी एक रूटीन है, तो हम आम तौर पे जो है वो जल्दी उठते हैं. You always tell the truth. तुम हमेशा जो है वो सच बोलते हो. They sometimes tell the truth. वो कभी कभी सच बोलते हैं. वो झूठ भी बोलते हैं, तो वो कभी कभी सच बोलते हैं. When you are using sometimes. He tells the truth. Now you know कि with he, she, it, ये सिंगुलर जो प्रोनाउंस है हमारे पास, हम उनके लिए यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड के साथ एस एंड ई एस. लेट्स सपोज ही नेवर वॉचेस टेलीविजन. अब यहाँ वॉच यूज़ नहीं होगा, बल्कि वॉचेस. इट नेवर हर्ट्स मी. लेट्स सपोज मेरे पास एक कैट है, वो मेरी जो है वो बहुत प्यारी बिल्ली है और मैंने उसको पाला है, लेकिन और वो मुझे जो है वो कभी भी तंग नहीं करती, मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, कभी कोई स्क्रैच नहीं डालती मेरी स्किन पे. तो वी कैन यूज़ इट नेवर हर्ट्स मी. सो मेनी वेज आर हियर इन विच यू मे मेक डिफरेंट सेंटेंसेस. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें ये बताते हैं कि इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए बेसिकली हम किस तरह अपने वर्ड्स को मॉडिफाई करते हैं और उनके मीनिंग में इजाफा कर. ये वर्ड्स जो है ना वो बेसिकली आपके वर्ड के मीनिंग को बढ़ाते हैं, इजाफा करते हैं उनमें. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बेसिकली आर द वर्ड्स दैट एड्स मीनिंग इनटू द वर्ड. ऑलवेज, हमेशा, 100% अगर आप कोई काम करते हैं हमेशा, इट शोज़ 100%. यूजुअली 75%, आम तौर पर, अमूमन, मतलब आप ज़्यादातर ये काम करते हैं. समटाइम्स, कभी कभी. फॉर एग्ज़ाम्पल 50%, कभी कर लिया कभी नहीं किया. 50% करते भी हैं और नहीं भी करते. रेयरली 25%, बहुत कम कभी ऐसा होता है आप किसी काम को करें वरना आप नहीं करते. और नेवर, कभी नहीं. आप टीवी कभी नहीं देखते, आप झूठ कभी नहीं बोलते, आप अपना होमवर्क कभी स्किप नहीं करते. यू विल यूज़ नेवर. इज़ दैट क्लियर? Let's come to the book, page number 49. There is a practice exercise. Look at the chart and get their daily routine. Now you can see at this page. Some names are given here. Jamal, Amna, Zahid, Rehan and Rabia. Yes, daily routines are drink milk, दूध पीना, eat sandwiches खाना, प्ले वीडियो गेम्स खेलना, गो टू द पार्क जाना, रीड स्टोरी बुक्स, कहानियों की किताबें पढ़ना. आई गिव यू एन एग्जाम्पल हेयर. आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ
बाकी सारी आपको ख़ुद सॉल्व करनी है। Jamal drinks milk. 3 ticks are given here. It indicates usually. Jamal usually drinks milk. Eat sandwiches. Jamal usually eat sandwiches. 3 ticks what indicates usually. Play video games. It means cross is here. Never. Jamal never plays video games. Jamal video game कभी नहीं खेलता है, वो ये काम कभी नहीं करता है. Go to the park. 2 ticks are given here and it indicates sometimes. Jamal sometimes goes to the park. जमाल कभी कभी पार्क जाता है, रोज़ाना नहीं जाता, कभी कभी जाता है, हफ्ते में एक दफ़ा या 15 दिन में एक दफ़ा. Read books, story books. Only 1 tick is here. Rarely. It means 25%. कभी कभी मतलब बहुत कम. कभी बुक पढ़ता है वरना नहीं पढ़ता, बहुत कम. Now you have to do Amna, Zahid, Rehan and Rabia. You have to do this page yourself. It is your homework. And I hope you don't have any difficulty in solving this practice exercise. Let's move to page number 50 in your grammar book. Exercise B is given here. Look at the chart again. Previous page पे previously आप chart करके आए ना, जमाल, आमना, जाहिद, रेहान, राबिया का. Circle the correct option. उस chart को mind में रखते हुए कि कहाँ आपने sometimes, rarely, usually यूज़ किया था. You can also see that chart again. आपको circle करना है correct answer. एक example यहाँ आपको दी हुई है. Amna rarely sometimes eat sandwiches. Rarely sometimes. अब इन दोनों में से what is the correct option? That was sometimes. Now you can see here Amna eat sandwiches के कॉलम में आप देखिए 2 ticks are given here. It indicates sometimes. Have you got the idea? आप ये चार्ट खुद सॉल्व करेंगे पहले और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे. Now I give you another example. Second one is Jamal usually sometimes drinks milk. अब आपको चार्ट याद है, उस चार्ट में कहाँ यूज़ हुआ था usually and sometimes drinks milk? Yes, we discussed Jamal usually drinks milk. So obviously you will circle usually. I think you have got the point. Now you have to do this exercise yourself. Amna rarely usually plays video game. आमना वीडियो गेम कब कितना खेलती हैं? आमतौर पे या बहुत कम? Rarely. Yes. जाहिद always never drinks milk. जाहिद हमेशा दूध पीते हैं या दूध नहीं पीते? आप चार्ट देखिए और उसमें से करेक्ट वर्ड पिक करके उसको सर्कल कीजिए. नेक्स्ट, रेहान always sometimes reads story books. रेहान कहानियाँ पढ़ते हैं हमेशा या कभी कभी? चार्ट देखिए, करेक्ट वर्ड पिक कीजिए. यू कैन डू दिस. राबिया रेयरली यूजुअली गोज़ टू द पार्क. राबिया बहुत कम पार्क जाती हैं या आमतौर पे वो जाती हैं. आपको उस चार्ट से हेल्प लेनी है. आई एम डेड श्योर यू कैन डू दिस एक्सरसाइज योर सेल्फ. Now you have to do another exercise, that is exercise C on page number 50. Complete the sentences with the help of the chart. Again जो प्रैक्टिस ए का चार्ट है वो आपको दोबारा से यूज़ करना है और इन ब्लैंक्स को फिल करना है. फॉर एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल इज़ गिवन फॉर यू. जमाल यूजुअली ईट्स सैंडविचेस. ये चीज़ अभी आपने सर्कल भी की थी, अब उसको ब्लैंक की फॉर्म में दिया है. यू हैव टू फिल दी करेक्ट ब्लैंक. सेकेंड इज़ आमना डैश रीड्स स्टोरी बुक्स. अब आमना जो अगर स्टोरी बुक्स पढ़ती हैं तो आपको देखना है कि वो ऑलवेज, यूजुअली, नेवर, समटाइम्स या रेयरली. व्हाट इज़ द करेक्ट वर्ड? नाउ यू कैन सी हियर आमना रीड्स स्टोरी बुक. यहाँ पे क्रॉस गिवन है. इट मीन्स यू हैव टू यूज़ नेवर. यस, आमना नेवर रीड्स स्टोरी बुक्स. आमना स्टोरी बुक्स नहीं पढ़ती हैं, कभी नहीं पढ़ती हैं. राबिया डैश ड्रिंक्स मिल्क. राबिया दूध पीती हैं. यू हैव टू पुट करेक्ट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. रेहान डैश प्लेज वीडियो गेम्स. फ्रीक्वेंसी चार्ट देखिए, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि रेहान वीडियो गेम्स कितना खेलते हैं. जाहिद डैश गोज़ टू द पार्क.
जाहिद पार्क जाते हैं, कब जाते हैं, यूजुअली, ऑलवेज, यू हैव टू यूज़ दिस काइंड ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. आमना प्ले वीडियो गेम्स. आमना प्लेज वीडियो गेम्स. जी, आमना वीडियो गेम खेलती हैं या नहीं. It is your homework. You have to do yourself. Now, note down your homework. Do exercise A given on page number 49 and exercise B and C on page number 50. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.